Okay, so this is assessment of firms. Let me know once the screen is visible to all of you. Yes, ma'am. Visible? Okay. So apart from the assessment of individuals, we have already understood about all the heads of the individuals, right? How we have to compute the taxable liability of an individual. Now the other important chapter in your syllabus is regarding the firms. So as individuals, there are separate provisions regarding to the assessment of firms, and these are very, very easy as individual. Why easy? Because for firms, there is no salary income as such. So if there is no salary, बचा क्या है आपका other sources? ना इनकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम्स होती हैं, यूजुअली इनकी अदर सोर्सेस कैपिटल गेन्स और पीजीबीपी जो इनकम्स होती हैं, दीज आर द मेन थ्री हेड्स in which we assess the firms. And if we discuss about the provisions, almost all the provisions are same for the firm which are applicable to the head of pgbp income. Apart from that, there are two more provisions which are very, very important that we will discuss today. Okay, so let's understand the brief background about these firms. So as we have understood in our business studies, that this partnership firm does not have a separate entity from the partners, right? Both are considered as the same. But for the income tax purposes, a firm is treated as a separate tax entity. इसका मतलब फर्म के लिए हम सेपरेटली उसकी इनकम निकालेंगे, ठीक है? और जो भी पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स को जो फर्म से मिलता है, so what all are the incomes that the partners get from the firms? They get interest on capital, right? Whatever capital they contribute to in the firm, they'll get an interest on that. At the same time, they also get the remuneration, right? All the salary and remuneration they get from the firms. And the third one is the share of profits, right? So whatever the profits the firm is making, that will be divided among the partners as it is disclosed in the partnership deed. So for income tax purposes, we separate these two. Okay, firm ka we'll calculate individually, and for partners we calculate individually. Similarly, for the limited liability partnership, in our commerce, we have already understood the differences between the limited liability partnership and a normal partnership, right? Limited liability partnership, by its name only, it is kind of a separate entity, right? There is a limited liability. It means no unlimited liability on the part of the partners, and usko as a separate legal entity माना जाता है. But for income tax purposes, the calculation for the assessment of the income tax is same irrespective of whether a firm is a partnership firm with unlimited liability or it is a limited liability partnership. So as per the income tax act, there is no such difference. तो अगर क्वेश्चन में आपके चाहे पार्टनरशिप फर्म आता है नॉर्मल या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आता है, the calculation will be same. आपको बस फर्म को as a separate entity consider करना है. So these are the silent features that a firm including the limited liability partnership is treated as a separate tax entity, and its total income should be computed under the four heads of income, क्योंकि सैलरी नहीं होती है, ठीक है? हाउस प्रॉपर्टी के भी केसेस बहुत कम है आपके क्वेश्चंस में. मेनली थ्री हेड्स इनके इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्योंकि वो अगर असेट कोई बेचता है तो कैपिटल गेन्स आता है, कहीं इन्वेस्टमेंट होती है तो डेफिनेटली वहां से इंटरेस्ट आता है, और आपकी पीजीबीपी इनकम, राइट? प्रॉफिट्स और लॉस तो बनाएगी फर्म. सो दीज आर द थ्री मेन हेड्स. बट yes, house property can be inclusive if they have given any kind of their property on rent to a tenant, but usually three main heads होते हैं. While computing the income of the firm under the head PGBP, besides the deductions which are allowed under section 30 to 37. So under the PGBP chapter, we have already understood about all the general deductions or the specific deductions which are allowed to the firms. So in this particular case, सारी मिलेंगी, and apart from that, special deductions है. Special deductions are in respect of the remuneration to working partners and interest paid to the partners. यहाँ पे देखो remuneration to working partners है. इसका मतलब अगर आपका कोई नॉन वर्किंग पार्टनर है या कोई स्लीपिंग पार्टनर है या कोई माइनर पार्टनर है, उस केस में रेम्यूनरेशन इज नॉट अलाउड. रेम्यूनरेशन का डिडक्शन तभी अलाउड है व्हेन इट इज बीइंग पेड टू द वर्किंग पार्टनर्स.
Interest paid to the partners. यहाँ पे there is no word working here, so we'll assume that it is to all the partners. So whomsoever has contributed in the capital of the firm have to give the interest, and that interest, the same interest is allowed as a deduction. Deduction का I hope the concept is clear. It means आपके profit में से वो reduce होने के लिए allowed है, ठीक है? However, the section 40 subsection B. So there are remunerations, limits which are given under this section, that interest on capital अगर मिल रहा है तो what is the maximum limit, remuneration मिल रहा है तो what is the maximum limit. So limits are defined under this IT Act, and at the same time, if the firm is opting for presumptive income under section 44 AD or 44 ADA, तब ये स्पेशल डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, क्योंकि दैट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन द लास्ट क्लास, प्रिजम्पटिव में एक फ्लैट रेट होता है, राइट? अगर आप वो फ्लैट रेट पे अपनी इनकम को कंप्यूट कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो, तो उसका इम्प्लाइड अजम्पशन होता है कि सारी डिडक्शंस आर ऑलरेडी सेट ऑफ, तो इसमें आपको कोई भी स्पेशल डिडक्शंस भी नहीं मिलेंगी, जो फ्लैट रेट है उसी के अकॉर्डिंगली योर इनकम विल बी कंप्यूटेड. Then the third point is regarding the tax rates. So individuals ka we have already understood about the slab rates, and for the firms they have a special flat rate, that is 30%. So whatever the income the firm is incurring, आप उसको डायरेक्ट 30% से टैक्स कर देना, प्लस यू कैन ऐड द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस which is same at the rate of 4%. After allowing deductions for interest, that is, we have already understood that the income of the firm is always after allowing for these two special deductions. The amount of income tax shall be increased by a surcharge of 12% of such income tax if the firm has total income exceeding 1 crore. So अगर 1 crore से ज़्यादा है firm की income, तो surcharge भी लगेगा, ठीक है? Surcharge की calculation भी we know, तो 12% आपका surcharge लग जाएगा. और फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हमेशा अगर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा तो पहले टैक्स निकलेगा, फिर सरचार्ज ऐड होगा, उसके बाद आपका हेल्थ एंड एजुकेशन हमेशा आपका सबसे एंड में लगता है, इफ यू कैन रिकॉल द फॉर्मेट, ठीक है? सो इसके अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ फर्म. देन there are special conditions which are given under section 134, which is regarding to whether the firm is eligible for claiming the special deductions or not. तो आपका section 184 है IT Act में, वो list down करता है all the conditions. अगर वो particular firm वो सारी conditions satisfied करती है, then only they will get a special deductions, otherwise they are not eligible for those special deductions. नेक्स्ट आता है आपका द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. अभी सेक्शन 184 हम डिस्कस करेंगे अभी इन डिटेल. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिगार्डिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. सो व्हाटएवर द शेयर द प्रॉफिट्स गेट फ्रॉम द फर्म, दीज आर एंटायरली एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स. सो व्हाटएवर शेयर दे आर गेटिंग फ्रॉम द फर्म, जैसे आपका रेम्यूनरेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद आपके प्रॉफिट्स कैलकुलेट हुए और कोई भी उनको शेयर मिलता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्म कुछ इंटरेस्ट दे रही है विच इज ग्रेटर देन द लिमिट, अगर वो लिमिट से ज्यादा दे रही है तो इसका मतलब वो कुछ और शेयर दे रही है उन्हें, राइट? तो वो कुछ भी जो एडिशनल देती है दैट इज ऑलवेज एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स. और जो उन्हें फर्म से मिलता है, जो पीजीबीपी से मिलता है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है या फिर जो भी रेम्यूनरेशन होता है, वो पार्टनर्स के लिए हमेशा पीजीबीपी इनकम मानी जाती है, ना कि सैलरी इनकम. दे आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ सैलरीज फ्रॉम द फर्म. whatever remuneration they are getting, it will come under the head PGBP for the partners. So this we will also understand with the help of an example. But abhi for the time being, just remember कि जो भी सैलरी इनकम उनको फर्म से मिलती है वो कभी भी सैलरी हेड में नहीं आती. और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि सैलरी का आपके जो कंडीशंस होती हैं उसमें वो बोलते हैं कि देयर शुड बी एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप. इन दिस केस देयर इज नो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, राइट? तो ये कभी भी सैलरी में नहीं आएगा. दे आर द पार्टनर्स, दे आर ओनिंग दैट पर्टिकुलर फर्म.
तो इस केस में हमेशा वो उनकी पीजीबीपी इनकम में ऐड होता है। जो भी उनको इंटरेस्ट मिलता है, जो भी उनको रेम्यूनरेशन मिलता है फर्म से, वो हमेशा सब कुछ पीजीबीपी में ऐड होगा। और जो भी ओवर एंड अबव लिमिट्स मिलता है या कोई भी स्पेसिफिकली शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलता है, दैट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, कोई भी किसी को भी डाउट है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट टेल मी ऑन द वेरी स्पॉट। ठीक है, वेट मत करना कि लेट मैम कंप्लीट the entire section and then we'll ask for doubts. You can interrupt me anytime. Then next comes section 184. So section 184 provides all the deductions. Okay, this is not important, this we have already discussed कि आपकी eligible conditions 184 में होती है और 40B में आपकी limit specify होती है। तो conditions क्या है 184 की? First is partnership is evidenced by an instrument. So there is a written document giving the terms of partnership. It means there is a partnership deed. There is a written document which is explaining all the modalities of the contract, that which partner will contribute what, which partner will have the share on profits of what. There is a proper division of all these activities. Okay, who will be the working partner, who will be the sleeping partner, and so on. So there is a proper contract between the, there is a written contract between the partners. If you can recall, हम लोगों ने जब भी पार्टनरशिप पढ़ा है तो पार्टनरशिप में हमने कहा है कि द पार्टनरशिप can be of oral agreement or written agreement, but as per IT Act this should be written only. अगर oral है तो कोई condition satisfied नहीं है, कोई special conditions नहीं. The next one is the individual share of the partners are specified in that instrument. ठीक है कि किसका कितना शेयर होगा, whether in terms of capital or whether in terms of the profit, everything it is explicitly mentioned in the partnership deed. If it is not mentioned, then the condition is not satisfied. Then certified copy of partnership deed must be filed. So although it is not very much necessary for the firms to file the copy of partnership deed along with the return of income. ITR file karte time it is not mandatory on part of them, but in case the assessing officer, in order to assess the taxable liability of a firm, if he is demanding so, then they should provide the copy of that partnership deed. Okay, so all these three conditions must be satisfied. It means they should have all these three, whatever conditions are there, they should have all such copies and they should have all these agreements in writing. Okay, so these are the three important conditions regarding the partnership deed. The next one is the subsequent assessment years. So once the firm is assessed as a firm for any assessment year, then it shall be assessed in the same capacity for every subsequent year, as if there is no change in the constitution of the firm or the share of the partners. Okay, so जिस तरीके से एक बारी firm assess हो गई, तो assessing officer will assume that it is on the basis of same whatever the benchmark is set, that this is the share, this is the contribution, and this is how they are managing it, this is the partnership deed. So he will assume that everything is same, there is no change. ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी चेंज होता है, एक्चुअल में अगर कोई भी आपका पार्टनरशिप डीड में चेंज होता है, या कोई पार्टनर एडमिट न्यू एडमिट होता है, या फिर कोई रिटायर होता है, then it is the very much duty is on the firm to furnish a certified copy of the revised instrument of partnership deed along with the return of income for the assessment year relevant to such previous year. So कभी भी ऐसा कोई change होता है तो ये responsibility firm should inform the assessing officer. And how will they inform it? That at the time of filing of returns they will also file a copy of the revised partnership deed. और उसके बाद जैसे असेसिंग ऑफिसर उसको एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंगली असेस कर देगा, उसके बाद अगेन फॉर द सब्सिक्वेंट assessment years it will be considered as same. So it is not required on the part of the firm to upload the copy of partnership deed every time. फर्स्ट इनिशियल ईयर में वो कर देंगे, उसके बाद वो सेम अजम्पशन चलेगी, फिर कोई चेंज होता है तो उसके बाद फिर वो सर्टिफाइड कॉपी जो भी रिवाइज्ड कॉपी है उसको अपलोड कर देंगे, फिर वो सेम चलेगा.
So these are the two main conditions regarding as to section 184. अगर ये conditions regarding the partnership deed and the subsequent assessment years, if these are satisfied, then special deductions in terms of interest on capital and remuneration will be provided to the firms. ठीक है? Then the next important is circumstances where the firm will be assessed as a firm but shall not be eligible for deductions on account of interest, salary, bonus, etc. So in this particular case कौन कौन सी वो conditions हैं जिसमें आपको special deductions नहीं मिलेंगी? वो condition है या तो फिर आपने section 184 satisfy नहीं किया है जो conditions हैं, या फिर आपने section 144. So section 144 is relating to the best judgment assessment. जो section 144 है वो ये specify करता है these are certain conditions regarding to as which there कि how will you ascertain that the assessment of the firm is the best judged assessment. It means all the assessments or all the filing of returns are fair and they are true to the nature. So there are various kind of conditions which are there. So you don't have to go deeper into that. On a surface, you should be aware that कौन कौन सी conditions है जिसमें नहीं मिलेगा, या तो section 144 is not satisfied या section 184 is not satisfied. So बस ऊपर ऊपर से करना है, ज्यादा deeper नहीं जाना है, because this is not very much explanatory explicitly given in your minutes. ठीक है, तो मैं ज्यादा आप लोगों का time spend नहीं कर रही हूँ 144 वाले में. Then deductions allowable on account of remuneration and interest to the partners. जो सेक्शन जो हम लोग अभी तक बोल रहे हैं कि मैक्सिमम लिमिट्स हैं रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे. सो नाउ दीज आर द प्रोविजंस व्हिच आर देयर. ठीक है, सो deals with the amounts which are not deductible in case of firms assessable as such. Deductions on account of interest and remuneration to the partners can be claimed under section 36 or 37 as the case may be, but it will be subject to the conditions prescribed by section 40b. ठीक है, so conditions क्या है? First is payment of salary, bonus, commission और remuneration. ठीक है, so याद कर लेना, कोई भी नेम हो सकता है. It could be salary, it could be bonus, it could be commission or directly remuneration by whatever name called to a non-working partner shall not be allowed as deduction. ठीक है, remuneration में we have already considered that it should be given only to the working partners, then only it is allowed as a deduction, otherwise it is not allowed as deduction. ठीक है, खाली working partner में डेफिनेटली जो वर्किंग पार्टनर होगा वही काम कर रहा होगा फर्म के लिए, इसीलिए उसको रेमुनरेशन मिल रही होगी. सो सिर्फ उसी के केस में वो अलाउड है. जो नॉन वर्किंग पार्टनर्स होते हैं यूजुअली आपके जो डेट वर्किंग में काम नहीं करते उनको यूजुअली रेमुनरेशन नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो वो डिडक्शन नहीं होगा. देन पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर will be allowed as deduction only when it is authorized by and is accordance with the partnership deed. So partnership deed का बहुत important role है कि आपको ये दोनों चीजें डिडक्शन जब भी मिलेंगी जब पार्टनरशिप डीड में लिखा है that the working partner will get a remuneration and whatever capital they are contributing they'll get an interest on that. So this should be specified. If it is not specified, it will not be allowed. Then payment of remuneration interest, although authorized by the partnership deed, but which relates to a period prior to the date of such partnership deed, shall not be allowed. ठीक है, इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप डीड जब बन गई है उस डेट के बाद जो भी रेमुनरेशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वही डिडक्शन होगा, ना कि उस डीड के बनने से पहले अगर कुछ मिला है तो. उसके बनने से पहले अगर कुछ मिला है तो वो कोई भी डिडक्शन नहीं होगा. सो द डेट ऑफ योर पार्टनरशिप डीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेट के बाद ही मिलेगा, उससे पहले का कुछ भी नहीं मिलेगा. देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेबल to a partner, although authorized by the partnership deed, shall be allowed as a deduction subject to a maximum of 12% simple interest per annum. So now you have got the limit of interest on capital, maximum limit.
सो 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम का जितना भी आप कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हो सिर्फ इतना ही डिडक्शन मिलेगा, उसके अलावा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल फर्म इज गिविंग द 14% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इट्स पार्टनर। सो अगर वो 14% दे रही है तो वो एडिशनल कितना दे रही है, 12 से 2%। सो वो 2% विल एड बैक बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। द मैक्सिमम डिडक्शन विच इज अलाउड इज 12% ओनली। जो एडिशनल दे रही है वो मैं अलाउ नहीं करूंगी, और मैं क्या करूंगी, जो भी नेट प्रॉफिट होगा फर्म का उसमें वापस वो 2% ऐड कर दूंगी, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। आपने अपनी इनकम को 14% से रिड्यूस कर लिया, होना 12% से चाहिए था, मैं इसका 2% ऐड कर दूंगी। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द पार्टनर, पार्टनर को 12% मैक्सिमम है ना, तो 12% का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उसकी पीजीबीपी इनकम हो जाएगी, और जो 2% एक्स्ट्रा फर्म दे रही है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज अ शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जो एक्स्ट्रा परसेंट दे रही है 2%, सो दैट एक्स्ट्रा इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर। ठीक है, सो यू ऑलवेज हैव टू एनालाइज द स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ बोथ द फर्म एज वेल एज टू द पार्टनर्स। पार्टनर के लिए एक्स्ट्रा 2% शेयर है, वो एग्जेम्प्ट होगा, और ये जो 12% है वो उसकी पीजीबीपी इनकम होगी। फॉर द फर्म जो एक्स्ट्रा 2% है, इट इज नॉट अलाउड, सो वो एड बैक, आपका प्रॉफिट 2% से और बढ़ जाएगा। सेम फॉर्मेट है जो हम यूज करते हैं पीजीबीपी का, सेम आपके फॉर्म्स का भी चलेगा। इट जस्ट दैट यू विल गेट 2 एडिशनल डिडक्शंस, और कुछ नहीं है डिफरेंस। ठीक है, but there is important point here to note that if the partnership deed provides for interest less than 12% per annum, अगर वो 12 से कम देती है तो फिर कम ही मिलेगा। ठीक है, आपकी 12% is the maximum limit, this is not the exact limit। आपको हमेशा अगर आपकी फर्म कम दे रही है तो फिर कम मिलेगा, अगर ज्यादा दे रही है तो लिमिट 12% है, 12% से ज्यादा वो नहीं दे सकती। ठीक है, देन द पेमेंट, यस मैम 12% से कम है तो सब टैक्सेबल है। 12% से कम है तो क्या मैम लाइक 12% से ज्यादा आपने कहा कि वो एग्जेम्प्ट हो सकता है, तो अगर 11% है तो क्या होगा? अगर 11% होगा तो 11% एग्जैक्टली, अगर देखो फॉर एग्जांपल आपकी फॉर्म का क्वेश्चन में कहता है कि 11% सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है वो अपने पार्टनर्स को, और जो भी आपके फॉर्मेट में गिवन होगा, ठीक है, कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये है, और जिसमें डेबिट साइड आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा एट द रेट 11%। तो मुझे पता है दैट द लिमिट इज 12%। ठीक है, तो अब मैं जब क्वेश्चन को एनालाइज करूंगी मैं बोलूंगी कि 11% दे रहा है तो इट इज टोटली फाइन, क्योंकि 12 से ज्यादा नहीं दे रहा है। अगर 12 से ज्यादा देगा तो इसका मतलब मुझे एड बैक करना पड़ेगा उनका प्रॉफिट। अब वो 11% दे रहा है तो इट इज राइटली डेबिटेड, आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई विल नॉट डू एनी कैलकुलेशन इन द असेसमेंट ऑफ द फर्म। फॉर द पार्टनर्स 11% सिंपल इंटरेस्ट जो भी उनको मिल रहा है एट द रेट ऑफ 11%, दैट इज कंसिडर्ड एज अ पीजीबीपी इनकम फॉर द पार्टनर। पार्टनर के लिए वो 11% ही हो जाएगा। फॉर्म के लिए मुझे कोई चेंज नहीं करना, मुझे कुछ ऐड बैक नहीं करना, जो 11% है वो एज इट इज बिल्कुल राइटली डेबिटेड है। आई विल नॉट डू एनी कैलकुलेशन रिगार्डिंग। हमें हमेशा लिमिट अपने दिमाग में रखनी है कि लिमिट क्या है, ये मैक्सिमम है। 12% से ज्यादा नहीं देना चाहिए, जितना भी कम देना है दो, फर्म की मर्जी है। 12 से ज्यादा अगर मिलेगा ना तो जो भी ज्यादा होगा वो मैं वापस ऐड कर दूंगी प्रॉफिट्स में, क्योंकि वो आपका आईटी एक्ट अलाउ नहीं करता है। क्लियर है ये पॉइंट या कोई डाउट है? मैम क्लियर है। अब ये क्वेश्चन करेंगे उसमें एक बारी चेंज करके भी देख लेंगे, अगर हायर होगा तो एक बारी लोअर करके देख लेंगे कि क्या ट्रीटमेंट होगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द रेम्यूनरेशन। सो इंटरेस्ट का तो मैक्सिमम पता चल गया 12%। फॉर दी वर्किंग पार्टनर्स जो भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसकी लिमिट्स क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि एक्चुअली कितना रिसीव हो रहा है पार्टनर्स का। सबसे पहले तो लिख लेना एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पार्टनर्स कितना रेम्यूनरेशन है। उसके बाद हमें लिमिट्स कैलकुलेट करनी है। लिमिट्स कैलकुलेट कैसे होंगी? ऑन द फर्स्ट 3 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट्स और इन केस ऑफ लॉसेस। इसका मतलब पहले सबसे पहले तो आपको बुक प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे, अभी बुक प्रॉफिट्स के कैलकुलेशन हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने बुक प्रॉफिट्स निकाले। बुक प्रॉफिट्स के बाद हमने उसका अमाउंट देखा कि वो कितना अमाउंट है। ठीक है, let me just show you with the help of the Excel sheet as well.
ठीक है, सपोज फॉर मेरा बुक प्रॉफिट है 10 लाख, ठीक है, मेरा बुक प्रॉफिट से 10 लाख, और सपोज रेम्यूनरेशन मेरे जो पीएनएल अकाउंट में आ रहा है वर्किंग पार्टनर्स के लिए, सपोज वो मैंने 3 लाख दिए उन्हें, मेरे पीएनएल में ये आ रहा है 3 लाख दिए उन्हें रेम्यूनरेशन। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि लिमिट क्या है, और मेरे बुक प्रॉफिट्स कितने हैं 10 लाख। ओके, सो फर्स्ट कहता है कि पहले 3 लाख पे जो भी आपका बुक प्रॉफिट है उसके पहले 3, या फिर अगर लॉस हो रहा है या 3 लाख से कम है, ठीक है, अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड है कि या तो 3 लाख से कम है आपका प्रॉफिट, या फिर आपको लॉसेस है, या फिर आपको उससे ज्यादा है, तो फर्स्ट 3 लाख। सो फर्स्ट 3 लाख पे आपकी लिमिट क्या है, 1,50,000 और एट द रेट ऑफ 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर। सो इस केस में डेफिनेटली 90% ऑफ 3 लाख कितना होगा, 2,70,000, राइट। बुक प्रॉफिट्स तो यही है ना, अभी पहले 3 लाख पे निकाल रही हूं मैं, तो उसका 90% इज 2,70,000 और 1,50,000, इन दोनों में से मोर, तो मोर इज डेफिनेटली 2,70,000। तो पहली लिमिट आ गई मेरी 2,70,000। दूसरा कह रहा है बैलेंस ऑफ द बुक प्रॉफिट। तो बैलेंस कितना है, 10 लाख माइनस 3 लाख, दैट इज 7 लाख। 7 लाख पे कितना है, एट द रेट ऑफ 6%, दिस इज 4,20,000। तो इसका सम क्या है, सम आ रहा है आपका 6 लाख। हम एज पर आईटी एक्ट आप इससे ज्यादा रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते। एक्चुअल में कितना दे रही है फर्म, 3 लाख, तो मैं 3 लाख का 3 लाख राइटली आपका डेबिटेड है, मैं कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि इस लिमिट को इस लिमिट से कंपेयर करना है कि एक्चुअल में कितना मिला है और लिमिट्स क्या दी हुई है आपकी आईटी एक्ट में। सो इस तरीके से आपको लिमिट्स निकालनी है कि पहले 3 लाख पे लॉस है तो 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर, उसके बचे हुए पे 60%। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज इन 10 lakhs इट वाज 6 lakhs, तो भी हमारा रेम्यूनरेशन जो पार्टनर्स को है उसके अकॉर्डिंगली 3 lakhs पे 90%, 2,70,000 इज ग्रेटर देन 1,50,000, तो 2,70,000 आ गया। बाकी बचे हुए 3 lakhs पे एट द रेट ऑफ 60%, सो 1,80,000 आ गया, टोटल 4,50,000, तो अभी भी लिमिट ज्यादा है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा बुक प्रॉफिट था 3 लाख, खाली 3 लाख था, तो उस केस में मेरी मैक्सिमम लिमिट 2,70,000 आनी चाहिए, और मिला कितना है पार्टनर्स को 3 लाख। सो इससे लोअर क्या है 2,70,000। इसका मतलब जो डिफरेंस है 30,000 वो अब मैं ऐड बैक करूंगी अपने प्रॉफिट्स में, क्योंकि लिमिट आपकी मैक्सिमम लिमिट आ रही है 2,70,000 और उनको रिसीव कितना हो रहा है 3 लाख। सो द 2 लाख जो भी डिफरेंस होगा 30,000 दैट विल आई विल ऐड बैक इन द प्रॉफिट्स, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है, आप इससे ज्यादा अगर दे रहे हो तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको, आपको वापस ऐड करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली फॉर द पार्टनर, इफ आई से पार्टनर के लिए जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो उसकी पीजीबीपी इनकम है, और जो एक्स्ट्रा उसको रिसीव हुआ है 30,000 वो उसका शेयर इन प्रॉफिट है जो कि एग्जेम्प्ट है, उसके लिए पीजीबीपी इनकम खाली 2,70,000 होगी। एक्स्ट्रा रिसीव वाला उसका शेयर है और शेयर इज कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज आपका बुक प्रॉफिट है लॉस -15,000 का लॉस है। ठीक है, अब -15,000 के लॉस में फर्स्ट में कह रहा है 3 lakhs ऑफ द बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस। अब मेरा है लॉस 15,000, तो लॉस पे डेफिनेटली 90% अगर मैं लॉस निकालूंगी वो भी नेगेटिव होगा, तो उसमें मिनिमम लिमिट क्या आ रही है मेरी 1,50,000। लॉस के केस में मेरी आ रही है 1,50,000, क्योंकि मेरा 90% ऑफ लॉस विल बी नेगेटिव, इट विल बी अ लॉस, तो हायर इज 1,50,000 और मिल कितना रहा है 3 lakhs। तो मैं कहूंगी खाली 1.5 लाख ही अलाउड है, बाकी 1.5 लाख वापस ऐड करो, वो डिडक्शन नहीं मिलेगी उसको। और ये 1.5 लाख
पार्टनर के लिए पीजीबीपी इनकम होगी, और जो एक्स्ट्रा 1.5 लाख है वो उसके लिए एग्जेम्प्टेड होगी क्योंकि वो प्रॉफिट्स में से शेयर है. इज दिस क्लियर? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. फर्म्स में दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द रेम्युनरेशन कैलकुलेशन. इन दोनों की लिमिट्स ही इंपॉर्टेंट है. अगर किसी को डाउट है दे कैन आस्क मी, अदरवाइज आई एम मूविंग टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. डाउट है किसी मैम को? इट्स क्लियर. Clear? Perfect. Now the next important thing is the calculation of book profits. Book profits कैसे calculate करने हैं? जैसे हम अपने PGBP इनकम फॉलो करते हैं उसी लाइंस पे हमें बुक प्रॉफिट्स अपने कंप्यूट करते हैं कि जो भी वो ठीक है, अगर नहीं है तो वो ऐड बैक कर दो. सिमिलरली जो इनकम्स क्रेडिटेड अलाउड है वो ठीक है, अगर नहीं अलाउड तो उसको ठीक है. तो ये सारे आपकी है. प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप उतना ही अलाउ करोगे जितना वो मैक्सिमम लिमिट के अंडर है. अगर वो ज्यादा है तो आप वो वापस ऐड कर दोगे. ठीक है. और आपको सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स देखने हैं कि नॉन पार्टनर से रिगार्डिंग कोई रेम्युनरेशन तो नहीं है, या फिर वर्किंग पार्टनर. आपको रेम्युनरेशन हमेशा ऐड करना है. क्यों ऐड करना है? क्योंकि बुक प्रॉफिट्स का यूज ही रेम्युनरेशन फाइंड करने के लिए होता है. इफ यू कैन सी, बुक प्रॉफिट्स का यूज क्या है? रेम्युनरेशन. तो हमेशा रेम्युनरेशन तो इस बुक प्रॉफिट्स में ऐड कर देना, क्योंकि दिस बुक प्रॉफिट इज बिफोर अलाउइंग द रेम्युनरेशन. गेटिंग माय पॉइंट? पूरा कैलकुलेशन इज सेम, बस बुक प्रॉफिट्स में रेम्युनरेशन जरूर ऐड कर देना, क्योंकि इसके बाद हम रेम्युनरेशन देखेंगे कि इसको मिलेगी कितनी, और जब देख लेंगे कि कितनी मिलेगी तब हम उसको डिडक्शन दे देंगे. ये बुक प्रॉफिट्स आपकी पीजीबीपी इनकम नहीं है, ये बुक प्रॉफिट्स है फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग द रेम्युनरेशन. तो जितना भी अलाउड है आपके इनकम आपके अकाउंट्स में वो सारा का सारा इसमें ऐड बैक कर देना. सिमिलरली जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो ऐड बैक कर देना. और सेम प्रोविजन जो हमने पीजीबीपी में अभी तक करे हैं कि जो जो नहीं अलाउ होते उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना, जो जो अलाउ होते हैं उसको ऐड कर देना. ठीक है. इस तरीके से you will calculate your book profits. So this is very important point. Add aggregate amount of remuneration paid payable to all the partners, whether it is working or whether it is not working. क्योंकि the purpose of finding the book profits is calculate what is the maximum limit on remuneration. तो remuneration तो आप अलाउ कर ही नहीं सकते इससे पहले, इसके बाद ही अलाउ. ठीक है. सो ये आपके जितने भी टेबल वाले पॉइंट्स है ना, ये आप रेफर कर लेना. ये हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो ये वैसे पॉइंट आपके डिस्कस हो जाते हैं. ठीक है. सो सपोज दिस इज योर एग्जांपल, बुक प्रॉफिट्स बिफोर सेटिंग ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस. अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. आई थिंक दिस इज देयर. ठीक है. अगर आपके क्वेश्चन में लेट मी टेल यू, आपके क्वेश्चन में कभी भी ऐसे नहीं होगा that you have to ascertain the unabsorbed depreciation or any business loss which is being brought forward. The question अगर एप्लीकेबल होंगी तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगी. और देयर इज अ प्रॉपर प्रायोरिटीज विच आर देयर कि किस लॉस को पहले ट्रीट करना और किस लॉस को उसके बाद. ठीक है. हमेशा आपके प्रॉफिट्स के बाद जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं, याद है हम लोगों ने सेट ऑफ लॉसेस किया है. सो हम हमेशा इनके प्रायोरिटीज होती है जो फॉलो करते हैं. तो इनकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग जो बुक प्रॉफिट है उसमें स्पेसिफिकली इन दोनों का ट्रीटमेंट एक्सप्लेन्ड है, क्योंकि हमें बुक प्रॉफिट्स निकालने हैं. राइट. सो उस केस में क्या ट्रीटमेंट है कि जो भी आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है वो कभी भी डिडक्ट नहीं होगा आपके बुक प्रॉफिट से. कोई भी अगर ब्रॉड फॉरवर्ड पिछले सालों का अगर कोई लॉस आ रहा है आपके इस साल में, तो कभी भी बुक प्रॉफिट्स में से मत करना. वो आगे जाके आपके सेट ऑफ हो जाएंगे, बट अभी हम बुक प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं तो बुक प्रॉफिट्स में से कभी भी उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. बट अगर कोई अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं अपने बुक प्रॉफिट्स में से. सेट ऑफ मतलब हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं आपके बुक प्रॉफिट्स की कि कितना आपका बनेगा रेम्युनरेशन के लिए. ठीक है. कैसे लिमिट कैलकुलेट करेंगे? सो उस लिमिट में आप अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को अलाउ कर सकते हो, बट आप ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को नहीं अलाउ करोगे डिडक्ट होना. बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस दैट जब आप अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को करोगे, जब आप नोशनली मतलब आप
जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है उसके अमाउंट को कंसीडर करोगे, आप उसको डिडक्ट नहीं करोगे बट आप नोशनली उसको कंसीडर करोगे। इसका क्या मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल आपके बुक प्रॉफिट्स बिफोर सेटिंग ऑफ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस आते हैं 1,80,000 और आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 80,000 और ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है 1,10,000 और हमें बुक प्रॉफिट्स निकालने हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेम्युनरेशन। तो सबसे पहले मेरा अमाउंट है 1,80,000। सो सबसे पहले मैं कंसिडर कर रही हूँ, अभी मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ, मैं एक बार बिजनेस लॉस को देख रही हूँ कि बिजनेस लॉस है कितना, क्योंकि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बिना इसको कंसिडर करे कभी भी डेबिट नहीं होता है। सो नोशनल कितना था मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 1,10,000, तो बचा कितना है 70,000, 70,000, 1,80,000 माइनस 1,10,000। सो इंस्टेड ऑफ allowing for the 8,000 deduction, I am able to do the deduction only for 70,000, क्योंकि मैंने जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है जो 1,10,000 है उसको मैंने कंसिडर किया नॉशनली, मैं अभी डिडक्ट नहीं कर रही। अगर मैं इसको कंसिडर नहीं करती तो मैं कैसे करती, 1,80,000 माइनस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन is equals to 1 lakh of your book profits purpose of calculation of remuneration। बट आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कभी भी बिजनेस जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है उसको कंसिडर बिना किए नहीं होगा, हमेशा उसको नोशनली आपको कंसिडर करना है। सो अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ 1,10,000 को तो मेरे पास बच तो बस 70,000 ही रहा है उसको सेट ऑफ करने के लिए। सो जो 70,000 है मैं बस अब वही अलाउ कर रही हूँ, तो इसका मतलब 1,80,000 माइनस 80,000 की जगह क्या होगा, 1,80,000 माइनस 70,000। तो आपका 1,10,000 यूज होगा बुक प्रॉफिट्स फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेम्युनरेशन। So this is a specific treatment which is given in the book regarding to the brought forward business losses and depreciation, unabsorbed depreciation. So ये आपका एक प्रायोरिटी है कि अगर आपको बुक प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते टाइम ये फिगर्स दी हुई हैं तो आप खाली अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को अलाउ करोगे बट आप ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को नोशनली कंसिडर करो। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस फॉरवर्ड जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है वो खाली फॉर एग्जाम्पल आपका 80,000 होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 80,000 है, तो मैं जब नोशनली कंसिडर करूंगी 1,80,000 माइनस 80,000, 1 लाख मेरे पास बच रहा है, तो 1 लाख में से तो अब मैं पूरा 80,000 अपना कर सकती हूँ, तो पूरा का पूरा 80,000 मैं कर सकती हूँ। तो 1,80,000 माइनस 80,000 दैट इज डेप्रिसिएशन, तो मेरा पूरा का पूरा 1 लाख विल बी कंसिडर्ड एज अ बुक प्रॉफिट। यहाँ पे 1,10,000 की जगह हो जाएगा आपका 1 लाख, क्योंकि पूरा 80,000 यूज हो रहा है क्योंकि मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कम था। So this is how you have to do the questions in case these two particular words are there, unabsorbed depreciation and brought forward business losses। और ये आपके फर्म्स के केसेस में ही आएगा, ये पीजीबीपी में ही आता है, ठीक है, क्लियर है या कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। Then regarding to the set off and carry forward of losses, so this we have already discussed. Now the computation of total income. So total income for the firms is exactly similar. At first we have to compute all the total heads of incomes, that is your house property, your PGP, your capital gains and other sources. You add them up, then you apply all the sections related to 60 and 61 relating to the clubbing of income। क्लबिंग ऑफ इनकम में इफ यू कैन रिकॉल हम लोगों ने कुछ कुछ फर्म से रिगार्डिंग भी करे थे, राइट, कि किस किस तरीके में आपके फर्म्स के केसेस में भी इट इज आपकी क्लब हो जाती है इनकम। उसके बाद कोई भी आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसके एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद आपका ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा, सारी आपको डिडक्शंस मिलेंगी, ये सारी डिडक्शंस दीज आर एप्लीकेबल फॉर द फर्म्स 80G, डबल जी ए, डबल जी सी, आई ए सी, आई बी, ये सब पढ़ लेना। इफ इट इज देयर इन द मिनट्स आपको ये सारी करनी है। 80C और आपका 80D और काफी आपकी डिडक्शंस होते हैं विच आर ओनली फॉर द इंडिविजुअल और HUL, वो आपके फॉर्म्स के केसेस में नहीं होते हैं। सो फॉर्म्स के लिए जो एप्लीकेबल डिडक्शंस है सिर्फ वही डिडक्शंस मिलेंगे एंड देन यू कैलकुलेट योर नेट इनकम एंड देन यू अप्लाई द tax rates. So for the firm, you have a flat tax rate of 30%.
but in case in the calculation of the firms there is any income under the long term capital gain, so long term capital gain we have already discussed, it is at the flat rate of 20%. if it is as per the provisions of section 11A 111A, अगर कोई short term capital gain है तो उसकी 15% होगी, या फिर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेफर्ड इन सेक्शन 112A एक्सीडिंग 1 लाख तो उसकी 10%। ये तीनों की तीनों हम लोग कैपिटल गेन्स में कर चुके हैं, जो उनका टैक्स रेट सेपरेटली, राइट। तो आपके जो टोटल इनकम जो इसको हटा के होगी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को, सिमिलरली अदर सोर्सेज, यहाँ पे अदर सोर्सेज नहीं लिखा है बट अदर सोर्सेज में भी जैसे आपकी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये सब सेपरेटली टैक्स होते हैं, ये कभी भी ना इनकम में क्लब नहीं होते हैं। तो इस वजह से आपकी जो फर्म्स है उसकी कैलकुलेशन के ये रेट्स होंगे, और अगर स्पेसिफिक आपकी गिवन है कि इस पर्टिकुलर इनकम को इस तरीके से करना है, इसको इस तरीके से करना है, तो वो हमेशा आपकी बाइफरकेट करके उन तरीकों से ही होगी, ठीक है। सो एज मेनी क्वेश्चंस यू सॉल्व यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज टैक्स रेट्स, ठीक है। उसके बाद अगर जो भी अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो सरचार्ज भी लगेगा, और फिर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर द टैक्स रेट्स फॉर फर्म्स। सो इन द Girish Ahuja sir there is only one question. Similarly in Singhania sirs also there is hardly many questions, so you can try to complete all these questions. This is it for your syllabus. Don't go much deeper into it, ठीक है। जितना बुक्स में है सिर्फ उसी पे रिस्ट्रिक्टेड रहना, एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी बुक, ठीक है। इसके बाद ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स इज नॉट इन योर सिलेबस, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट इन योर सिलेबस, सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू इट, ठीक है। मैंने पार्टनर्स वाला ट्रीटमेंट आपको साइमल्टेनियसली बता दिया, सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कंप्यूटेशंस इजीली, ठीक है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू 2 minutes of time, read this question and try to understand it. Satish and Associates, a firm of chartered accountants consisting of two partners, G and S, sharing profits equally, furnishing the following income and expenditure account for the year ending 31st March 2020. And these are the details. Compute the total income of the firm and the tax payable, and also state the treatment of the income from the firm in the hands of partners. So you'll get a question like this. कि firm का भी calculate करना है, and at the same time you need to calculate for the partners as well. Okay, so let's try this question. First of all, we'll take the net profit or the excess of income over the expenditure. So this is 1,02,000. So हमेशा हमारा starting point profits या income से ही होता है. उसके बाद we have to add back all the deductions which are not allowed as deduction under the Income Tax Act. तो पहला है आपका establishment and other expenses allowed. Stipend to assistants. Assistants are not the partners, so any kind of stipend or salary they have given to their staff, it is totally allowed. Entertainment expenses are allowed. Running and maintenance of motor car allowed. Depreciation. Now this is depreciation of motor car purchased during the year for 9 months at the rate of 20%. Now recall your depreciation provisions. Is it 20% or 15%? What is the applicable depreciation rate for motor cars? जो मूवेबल assets होते हैं उनका कितना होता है applicable? जल्दी बताओ कितना allowed होता है? मैम 15%. First of all, we'll add this depreciation. जो भी इन्होंने दिया है वो हम वापस add कर रहे हैं. That is 60,000.
और नीचे हम सब्ट्रैक्ट में जो एक्चुअल में मिलना चाहिए वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 15% मिलता है। तो सबसे पहले ये देखो कितना यूज हुआ है। तो 9% मतलब 180 डेज से तो ज्यादा हुआ है। अगर 180 डेज से ज्यादा पुट टू यूज है तो हम पूरे साल का देंगे इसको डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले ना मुझे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि कॉस्ट नहीं गिवन मुझे गिवन क्या है कि डेप्रिसिएशन इतना लगा है 60,000। तो इसी डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले से आई कैन कैलकुलेट द कॉस्ट, राइट। सो कॉस्ट क्या होगी इसकी 60,000 जो भी डेप्रिसिएशन लगा है इनटू 12/9, 9 मंथ्स का था, 9/12 से किया होगा। तो मैं इसको रिवर्स कर रही हूँ। सो 12/9 20%, 20% से लगा होगा तो मतलब 120%। दिस इज इसका कैलकुलेशन कैसे होगा आपका 100/20, नॉट 120, सॉरी 20/100 होगा ना, तो इट विल बी 100/20। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 4 लाख। मैंने कैसे किया होगा, जो भी मेरी कॉस्ट होगी सपोज x, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया होगा 9 मंथ से, तो 9 × 12, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया होगा 20% से, तो 20/100 ये मैंने यूज किया होगा। और मेरी वैल्यू क्या आई है 60,000। अब मुझे x निकालना है। तो अगर मुझे x निकालना होगा तो मेरी ये सारी चीजें वहां जाके रिवर्स हो जाएंगी। तो 60,000 × 12/9 बन जाएगा और 20% क्या हो जाएगा 100/20। तो मुझे अब मेरी कॉस्ट निकल गई 4 लाख। ठीक है, अब मेरी जैसी कॉस्ट निकल गई 4 लाख, मैं पूरे साल का उसको डेप्रिसिएशन दे दूंगी, क्योंकि पुट टू यूज 180 डेज से ज्यादा है। ये भी आपका 60,000 ही आ रहा है, बट हो सकता है ये डिफरेंट भी आता। इस केस में इट इज कमिंग आउट टू बी सेम 60,000, बट दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, क्योंकि आपके डेप्रिसिएशन कंसेप्ट्स में हमेशा आएगा। हमेशा पीजीबीपी में याद रखना, डेप्रिसिएशन में कुछ ना कुछ होगा कैलकुलेशन, इतनी आसानी से नहीं देंगे कभी भी डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो ये हमने ऐड बैक कर दिया और जो एक्चुअल मिलना था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर जी एट द रेट ऑफ 24% पर एनम। ये इंटरेस्ट ऑन लोन 2 होना चाहिए था, फ्रॉम गलत है। हम पार्टनर जी को इंटरेस्ट बट कितना दे रहे हैं 24%। तो अब ये 24% तो हमारी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा हो गया, राइट। और मैक्सिमम लिमिट से कितना ज्यादा हो गया, पूरा ही हाफ। 12% मिलता है, दे कितना रहे हैं, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 12% दे रहे हैं इट इज नॉट अलाउड, सो आई विल एड इट हियर। इंटरेस्ट ऑन दिस इज, वैसे यहाँ पे लोन गिवन है, चाहे लोन हो चाहे कैपिटल हो, इसका ट्रीटमेंट सेम ही होगा आपका। ठीक है, डोंट गेट्स कंफ्यूज। यूजुअली जो पार्टनर्स लोन देते हैं इट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल ओनली, ऑल्दो आई रिमेंबर हमेशा एक प्रायोरिटीज होती है। जब भी आपका डिसोल्यूशन फॉर्म होता है तो पहले लोन्स की पेमेंट की जाती है, उसके बाद कैपिटल की जाती है। बट आपके इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन द लोन एंड द कैपिटल। whatever interest they are getting in terms of contribution to the firm, कोई भी कैपिटल में अगर उनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसका 12% इंटरेस्ट इज अलाउड। सो ये दोनों केस में आपका रेलिवेंट है। सो 12% ज्यादा है, पूरा इसका टोटल हाफ 4,000 हो गया आपका, जो मुझे अब ऐड बैक करना है। क्लियर है? ये 24,000 ज्यादा दे रहे थे, इसको 12% देना चाहिए था। सो पूरा इसका हाफ हो गया जो मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ, 24,000। नाउ रेम्युनरेशन। तो रेम्युनरेशन तो डेफिनेटली मुझे कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैं अभी बुक प्रॉफिट्स भी निकालने हैं मुझे। तो मैं अब रेम्युनरेशन को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि रेम्युनरेशन मैं अभी निकालूंगी कि लिमिट क्या होती है। सो रेम्युनरेशन टू जी is 2,40,000 and remuneration to S कितना है 2,10,000। ठीक है, अभी मैं निकालूंगी पहले। ठीक है,
तो डेप्रिसिएशन जो अलाउ नहीं था वो ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ नहीं था वो ऐड कर दिया, दोनों रेम्यूनरेशन ऐड कर दिया और जो डेप्रिसिएशन मिलना था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ का सब कुछ डन हो गया। नाउ कम टू दिस ऑडिट फीस। ऑडिट फी आपकी हमेशा अलाउड होती है, कंसल्टेंसी चार्जेस हमेशा अलाउड होते हैं, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नाउ दिस इज द अदर सोर्सेज इनकम, so I will not allow this, so it should be subtract. Interest on government securities 1000, ये सब्ट्रैक्ट होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डेफिनेटली आपका सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद मैं निकालूंगी सबसे पहले अपना बुक प्रॉफिट, विच इज सम ऑफ these figures minus sum of these figures. तो मेरा बुक प्रॉफिट आ गया 4,66,000। ठीक है, सो अभी आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस पार्ट। बुक प्रॉफिट, नाउ आई विल कैलकुलेट द लिमिट्स ऑन रेम्यूनरेशन। ओके, सो लिमिट्स ऑन रेम्यूनरेशन क्या कहता है? 3 लाख पे मेरा 1,50,000 या फिर 90% ऑफ 3 लाख, दैट इज 2,70,000, विच एवर इज हायर। सो डेफिनेटली 2,70,000 इज हायर। सो पहले 3 लाख जो बुक प्रॉफिट्स है उस पे मेरी लिमिट आ गई 2,70,000। उसके बाद नेक्स्ट मेरी लिमिट, नेक्स्ट कितनी बची? 4,66,000 माइनस 3 लाख, विच इज 1,66,000। 60%, 60% of this next balance book profit, it is 99,600. So sum of these two figures is 3,69,600. So this is the maximum limit. कितना मिल रहा था इनको? इनको मिल रहा था 45,000, 4,50,000 इनको मिल रहा था, but allowed कितना है? Only 3,69,600. Now I will subtract the remuneration. I will subtract the remuneration to partners, which is allowed, which is equals to 3,69,600. ठीक है, जैसे ही मैंने remuneration निकाल दिया, now this is my PGBP income, that is this minus this. So 96,400 is my PGBP income. Clear है सबको? सबसे पहले we have added the remuneration because this is very important. If we don't add the remuneration, how will we calculate the book profits? Book profits का main purpose is to calculate the limits for remuneration. ठीक है, और हमने बुक प्रॉफिट यूज करके हमने अपनी लिमिट्स निकाल ली और चल गया कि लिमिट अब इतनी है, वो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी, हमारी पीजीबीपी इनकम आ गई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है किसी को तो प्लीज आस्क मी, अगर कोई डाउट है तो। नो डाउट्स? तो हमारी पीजीबीपी इनकम आ गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है हमारा? इट इज 60,000। उसके बाद अदर सोर्सेज इनकम कितनी है हमारी? दैट इज इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट इज 50,000। तो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, विच इज सम ऑफ दीज थ्री हेड्स, दैट इज 2,06,400. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द taxable income, sorry, tax liability. टैक्स लाइबिलिटी में टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आपका क्या एट द रेट ऑफ 20%. सो दिस विल बी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दैट इज 12,000। तो इसका डायरेक्ट है। बाकी आपका कितना बचा है? दिस माइनस हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अलग निकाल दिया 1,46,400। इसको हम टैक्स करेंगे एट द रेट ऑफ 30%।
this multiply by this. So this और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका बन रहा है दैट इज 12,000. सो टोटल टैक्स लाइबिलिटी before cess and all, it is coming out to be this plus this 55,920. इसके बाद you will add health and education cess which is at the rate of 4%. So this is multiply by this. So this is coming out to be 2,237 approximately. So this is the tax which is to be paid. So tax payable. So this is this plus this. And now we have to round off. So round off करेंगे तो 1581556 है ना, तो it will be 60. ये राउंड ऑफ कभी भी मत भूलना अपने मेन एग्जाम में जब आप करोगे, हमेशा इनकम को राउंड ऑफ करके करना है. सो क्लियर है सबको हमने फॉर्म्स की कैसे निकाली है. इसके बाद मैं वर्किंग पार्टनर्स की बताऊंगी आपको. ये क्लियर है सबको या कोई डाउट है किसी को? सो प्लीज आस्क मी. पार्टनर्स का क्या है आपके? फॉर पार्टनर्स दैट इज मैंने कुछ फॉर्मूला लगा दिए थे इसमें, तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको. पार्टनर्स की हमारी सैलरी इनकम कुछ भी नहीं है, उनकी पीजीबीपी इनकम. और पीजीबीपी इनकम में क्या होगी? इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन. इंटरेस्ट उनको कितना मिल रहा है? 24. वैसे उनको 48,000 मिलना चाहिए, बट उनको कितना मिल रहा है? इंटरेस्ट 24,000, राइट. 24,000 उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है, बाकी इनको ये 24,000 मिल रहा है. और बाकी रेम्युनरेशन कितना मिल रहा है उन्हें? 3,69,600. तो ये जो दोनों अमाउंट है, दिस इज देयर पीजीबीपी इनकम. ओके, सो दिस इज देयर पीजीबीपी इनकम. That is 3,93,600. Apart from that, जो इनकी एग्जेम्प्टेड इनकम है, मैं नीचे लिख देती हूँ यहीं पे. एग्जेम्प्टेड जो इनकम है विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स सिंस इट इज कंसिडर्ड एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो उनकी इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा जो 24,000 है, प्लस जो उनका बचा हुआ रेम्युनरेशन है. बचा हुआ कितना है? कितना रिसीव हुआ था इनको? इनको रिसीव हुआ था 4,50,000 माइनस जो उनको मिला है. सो दिस 80,400. ये दोनों इनकम इनकी अब एग्जेम्प्टेड इनकम है, क्योंकि दोनों की दोनों को ट्रीट किया जा रहा है कि ये आपके शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है. ये आपके इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन जो आपको पीजीबीपी से अलाउड है, उसी पे बस अब आपको टैक्स पे करना है. जो भी एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, इट इज कंसिडर्ड एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. ठीक है. अब दूसरा आता है, जैसे मैंने अभी क्या किया है, मैंने पार्टनर्स की एक साथ दिखा दी है. अगर ये बोलते हैं कि आपको पार्टनर्स की अलग अलग दिखानी है, जी की अलग दिखानी है और आपको एस की अलग दिखानी है, तो आप फिर रेम्युनरेशन को डिवाइड कर लोगे इन द रेशियो ऑफ द अर्लियर रेम्युनरेशन व्हिच वाज गिवन. सो अर्लियर रेम्युनरेशन कैसे थे आपके? 24:21 था, मतलब 8:7. अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपकी रेशियो कितनी आ रही थी? 8:7. G/S. जो आपकी अर्लियर जो आपको रेम्युनरेशन मिल रही थी, वो आपको 8:7 की मिल रही थी. सो इसी रेशियो में यू कैन डिवाइड द रेम्युनरेशन. ओके, सो रेम्युनरेशन कितना है आपका? 3,69,600 into 8 divide by 15, that is 1,97,120. and remuneration to X will be
जो भी आपकी 3,69,700 मल्टीप्लाई बाय 7/15. So this has come out to be 1,72,480. So this is how you have to calculate. Okay, and this is his PGBP income. Any doubts to anyone in this question? This is very important and this is explanatory enough. इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के एग्जाम में. आप लोग और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो सिंघानिया सर के बुक से, या फिर इनके जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क. ठीक है, अदरवाइज दिस इज इट रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ फॉर्म्स. और यहाँ पे खाली दो स्पेशल डिडक्शंस, इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन की बात ज्यादा है, इसी पे ज्यादा इफेक्ट आएगा आपके. इसके अलावा इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है. दिस इज सेम एज योर पीजीबीपी इनकम.